ہمارے نوجوان جو اس وقت نشہ میں ہیں، ڈرگس میں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ والدین کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ پورے ہمارے علاقے کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے یہ مسرت کا اور خوشی کا باعث ہے۔ بہت ہی خوشی ہے آج حفظ کی اور دستار بندی 6 بچے اور بچیوں کی دستار بندی و ردہ پوشی ہوئی۔ الرحیم، آج 24 اگست 2025 کو ہمارا جلسہ دستار بندی مدرسہ تعلیم المسلمین طیب آباد کرپڑ علاقہ دندراٹ کے اندر طے ہوئی۔ الحمدللہ اس سال 6 بچے اور بچیوں کی دستار بندی و ردہ پوشی ہوئی۔ 2016 میں اس مدرسے کی سنگ بنیاد ہوئی تھی اور باضابطہ اس مدرسے کا آغاز 2018 سے شروع ہوا اور اب تک الحمدللہ 14 حفاظ اکرام یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، جن کی دستار بندی ہو چکی ہے، یہاں سے نکل چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں 14 حفاظ اکرام۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے، لوگوں کا تعاون بھی ہے۔ یہاں علاقے کے اندر غربا طبقے کے ہی لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس مدرسے کے ساتھ یہ جامع مسجد ہے ہماری یہاں، اس مسجد کے ساتھ تقریباً 100 گھر آتے ہیں، جس میں محلہ ایروگا ہے، محلہ چلالی ہے، محلہ تمسی باغ ہے، محلہ دھاندلہ ہے، اور یہ لوگ غریب ہونے کے باوجود بھی مدرسے کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے، انہی لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے مدرسہ آج یہاں تک پہنچا ہے کہ ہمارے اس مدرسے سے 14 حفاظ اکرام بچے اور بچیوں نے مکمل حفظ کر دیا ہے۔ اور آج ہمارا یہ جلسہ تھا، جلسہ دستار بندی، جس میں حضرت مولانا ہلال احمد قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا عرفان صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا عاشق صاحب تشریف لائے ہیں، حافظ اسلم صاحب آئے ہیں، مولانا عرفان صاحب آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکرام اور حفاظ اکرام کی بھاری تعداد یہاں موجود ہے۔ اور آج جو ہے کافی بارش تھی، صبح سے لے کر اس وقت تک کافی بارش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور کافی لوگوں کی تعداد تھی۔ الحمدللہ جلسہ دستار بندی ہوا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہوا۔ ہم تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے آگے جو ہے مدرسے کا بہت سارا کام باقی ہے۔ 3 سال سے یہاں تعمیرات کا کام بھی چل رہا ہے اور 2 کمروں کی جو ہے لینٹر بھی ہوا ہے مدرسے کا، اور اسی طرح سے آگے جو ہے ابھی ہمیں بہت سارے گراؤنڈ کی ضرورت ہے، مدرسے کے جو ہے آگے جو ہے تعمیرات کی اور ضرورت ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ مدرسے کا بھرپور جو ہے تعاون فرمائیں۔ تو میسج میرا یہی رہے گا کہ اس وقت جو ہے اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں کافی خرافات ہیں، اس دور کے اندر تو میرا یہی نوجوانوں سے درخواست رہے گی کہ علماء سے جڑ کر رہیں، مدارسوں سے جڑ کر رہیں، مساجدوں سے جڑ کر رہیں۔ دین جو ہے وہ زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور جب تک نہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ تڑف ہوگی، طلب ہوگی، تو دین جو ہے ان اجتماعوں میں جب تک نہ ہم جائیں گے، جلسوں کے اندر جب تک نہ ہم جائیں گے، علماء کی بات جب تک نہ ہم سنیں گے، تو تب تک دین ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے نشے سے اکثر میں نوجوانوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اس چیز سے دور رہیں، اس سے زندگی تباہ ہوگی۔ اللہ نے قیمتی زندگی ہم سب کو عطا کی ہے، یہ بہت بڑی قیمتی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اور اس زندگی کو اگر ہم بچا کر لے گئے دنیا سے، دین پہ ہم نے اس کو استعمال کیا، دین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو اگر ہم نے بچایا اور دنیا سے ہم جو ہے دین کے مطابق زندگی گزار کر گئے، تو اللہ دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرے گا، دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ کے ساتھ علماء کو پوچھ کر جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد ہے، میں اس مدرسے کے ایک ناچیز صدر ہوں۔ یہاں کی کمیٹی کی طرف سے میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہاڑی علاقے میں یا اس پسماندہ علاقے میں آنے کی زحمت کی۔ دوسرا، میں تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس خاص مثال زبردست بارش کے باوجود لوگ گھروں سے نکلے اور یہاں پہنچے اور یہاں ہمارا تعاون دیا، دین کی بات سنی اور اس دین کی بات کو یہ لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔
और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों की आज दस्तारबंदी की, जिन्होंने एक कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, मुकम्मल किया। इसी तरह हम सब को अल्लाह तबारक ताला हर वालिद को अपना बच्चा दीनी तालीम या कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए भेजे। मेरे भाइयों, बात यह है असल में कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं अपने बच्चों को ज़बरदस्त तालीम दे रहे हैं, मिसाल दुनियावी तालीम दे रहे हैं, मगर जब नतीजा सामने आता है उस बच्चे को किसी मजलिस में या किसी जगह पर किसी स्टेज पर लिया जाता है तो उसके ज़बान से बात नहीं निकल सकती है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन मौलाना हजरात को, जिन उस्तादों ने इन नानिहालों को मिसाल तैयार किया, जिनके बयान को सुनकर हमारे दिल बाग बाग हुए, हमारे दिल खुश हुए कि इन्होंने ऐसे अच्छे बयान किए जैसे कि एक आलिम बयान करता है, और इन्होंने ऐसी मिसाल वो नातें बयान की तो हमारे दिल खुश हुए और बाग बाग हो गए। अल्लाह तबारक ताला इस पूरी उम्मत को, इस पूरी कौम को अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से हमें एक दूसरा ये भी सबक मिलता है। इस वक्त आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, जो बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं वो बजाय अपने जीने के मकसद के लिए, बजाय मिसाल अच्छा काम करने के लिए नशे में मुब्तला हैं। और मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि इन जो आपकी औलादें हैं उनको इन मदारिसों के अंदर दाखिल करें ताकि वो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आपने सुबह से अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल कर आए और बारिश होने के बावजूद आप इस जलसे में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। इस दूर दराज इलाके में ये इदारा चल रहा है जो तालीमुल मुस्लिमीन के नाम से चल रहा है, और बहुत कलील मुद्दत में इन्होंने उम्मत को ऐसे होनहार उलमा दिए हैं। आज भी अभी मौलाना फरमा रहे थे कि 14 हुफ़ाज़ किराम इस मदरसे से आज तक फ़ारिग हुए हैं, और हम उलमा की इस मीडिया की वसातत से आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कॉलेजों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं। हर चीज़, हर तबके में हमारे लोग होने चाहिए, और हमें खुशी होती है जब हमारा कोई ऑफिसर बनता है, हर चीज़ में हमारे बच्चे आके हो। लेकिन सबसे पहले जो हमने तरजीह देनी है वो दीन को देनी है, और इस जलसे से यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो इस वक्त नशा में हैं, ड्रग्स में हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो कुरान करीम की तालीम को हासिल करें, कुरान करीम को तरजीह दें, ताकि इसी में हमारी दुनियावी कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सगीर अहमद है, मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम नबी है जी। बहुत ही खुशी है आज हिफ्ज़ की और दस्तारबंदी हुई जो आज हमारी, बहुत ही खुशी है उसके। उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि दुनिया की तालीम भी हासिल करो, पर दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। जो हमें यहाँ पर मदरसों में मिलता है वो हमें दुनियावी तालीमों में नहीं मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मेरे वालिदैन का नाम, वालिद का नाम गुलाम हुसैन साहब है। हमें बहुत खुशी है, 4 बच्चे और 2 बच्चों की दस्तारबंदी हुई थी, हमको दस्तारबंदी हुई और बहुत खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मंजूर अहमद, मेरा वालिद का नाम है अब्दुल रहीम। माशाअल्लाह हमें बहुत खुशी है। हमारे 5-6 साथी हैं हमारे साथ, आज जो हमारी दस्तारबंदी हुई हमें बहुत खुशी है। रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर, वालिद साहब का नाम फ़ारूक अहमद शेख। खुशी तो इस वक्त दिल में बहुत हो रही है, लेकिन ये सब हमारे उस्ताद किराम की वजह से हो रहा है। अगर ये दिन रात एक करके हम पर मेहनत ना करते तो हम इस वक्त आपके सामने खड़े ना होते। मैं अपने उस्ताद किराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जो उस्ताद किराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमें इस यहाँ तक पहुँचाया। और इस वक्त माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उस्तादों ने हमारे पीछे मेहनत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खुशी भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये खुशी वो कम खुशी नहीं है, ये आखिरत की खुशी भी है और दुनिया की भी खुशी है
ये जो मेरे 2 बच्चे हैं जो हाफिज़ कलमुल्लाह हैं, जो उनकी आज दस्तार बंदी हुई, एक बच्ची है मेरी, एक लड़का है, और बहुत सी से बहुत खुश हुआ हूँ मैं कि कि इन्होंने बच्चों ने हाफिज़ कुरान मस्जिद इस मदरसे। सबसे पहले जब उस्ताद कराम मेहनत बच्चे पे कराएं तो तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। अगर उस्ताद कराम बच्चे पे मेहनत न करे तो उस बच्चे की हिम्मत नहीं है वहाँ पहुँचने की। ये पहले उस्ताद कराम की हिम्मत है जो इस स्टेज पर बच्चे पहुँचाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और दिली की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप इस बारिश के खस्ता हाल बहुत बारिशों के बावजूद जो है आपने यहाँ आना जो है तकलीफ़ के बावजूद यहाँ आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक मसरत की बात है, खुशी की बात है, तो वालिदैन के साथ साथ इस वक्त ये पूरे हमारे इलाके के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है ये मसरत का और खुशी का बाइस है कि 6 हुफ़ाज़ कराम आज हमारे इस मदरसे से जो है यहाँ से फ़ारिग हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा हकदार तो मुबारकबाद के मेरे हिसाब से जो है अभी वालिदैन उस्ताद कराम है, उसके बाद इनके वालिदैन हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ का इलाका है, जो लोग इसका ताउन करते हैं वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। तो जहाँ तक खुशी की बात है और यहाँ की जो परेशानियों की बात है वो तो आप खुद चल के यहाँ पे आए, आपने देखा कितना जो है दूर दराज इलाका है, आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, खाली यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे तामीराती काम करने की या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम करने की तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे चीज़ें लाना, इस तरह का इंतज़ाम करना 400-500 लोगों के लिए, तो मैं तो कमेटी को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जो अनथक कोशिशों के बावजूद उन्होंने पिछले 3 दिनों से उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया, तो बहुत बहुत मुबारक। और साथ में मेरी गुजारिश रहेगी पूरे हमारे जो इलाके के लोग हैं, जो यहाँ के हैं, हमें जो है दिली ताउन यहाँ करना चाहिए और जितना हो सके, चाहे गुरबा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमारे मोहतरम साहब ने कहा कि ज़्यादातर अक्सरियत जो है यहाँ पे गुरबा लोगों की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, माली जानी जो भी हमसे हो सके, हमें जो है इस मदरसे के लिए ताउन करना चाहिए। शुक्रिया।